السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر۔ ناول راز حیات کے ساتھ جس کی رائٹر ہیں مہک خانم، اور یہ اس کی 13th ایپیسوڈ ہے۔ اس وقت حویلی کے سبھی افراد ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ شہزاد کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب سب ایک ساتھ کھانے کی میز پر جمع ہوئے تھے۔ ہال میں چند مزید کرسیاں لگا دی گئی تھی تاکہ سب آرام سے بیٹھ سکے۔ میز پر دیسی کھانوں کے ساتھ ساتھ کچھ غیر ملکی پکوان بھی رکھے گئے تھے، نوڈلز، میکرونی، چائنیز رائس وغیرہ۔ حرم اور انارا کو روایتی کھانوں سے رغبت نہ تھی۔ پہلے صرف حرم کے لیے یہ الگ پکوان تیار کیے جاتے، اب انارا بھی اس فہرست میں شامل ہو چکی تھی۔ روبان خان نے حیدر خان کے برابر بیٹھے باران کو دیکھ کر گلا کھکارا، جس پر باران سمیت سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر براجمان تھے، جہاں سے ان کی بات کا وزن اور بھی گہرا محسوس ہوتا تھا۔ برخودار، یہ کیا ماجرا ہے؟ 3 دن سے تمہارے کمرے کا سامان مسلسل بدلا جا رہا ہے۔ روبان خان کی گہری اور قدرے شاکی نگاہوں کو دیکھ کر زارون کے پہلو میں بیٹھے شامی نے لبوں پر مٹھی رکھ کر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو بمشکل روکا۔ جناب سردار کی کلاس لگنے والی تھی، اس نے شرارت سے سوچا۔ باران نے نوالت چباتے ہوئے گردن گھما کر سب کی طرف دیکھا۔ تمام نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی نیا معمہ ہو۔ پھر اس نے ایک نظر اپنی دائیں جانب بیٹھی زارا پر ڈالی، جو یکایک نروس سی دکھائی دینے لگی۔ وہ تایا جان، دراصل وہ سامان مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے بدلوا دیا، باران نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، جیسے بات میں کچھ خاص پیچیدگی نہ ہو۔ اچھا، پسند نہیں تھا اس لیے توڑ کر پھینک دیا؟ ان کے یوں اچانک مگر بظاہر تحمل سے ادا کیے گئے جملے نے سب کو چونکا دیا۔ باران کا نوالا حلق میں اٹک گیا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگا، جیسے سانس اور الفاظ دونوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ زارا بیٹا، اپنے سائیں کو پانی دو، کہیں اٹیک ہی نہ آ جائے اسے، روبان خان نے ہکا بکا زارا سے کہا، جس نے جلدی سے گلاس تھام کر باران کی طرف بڑھایا، جسے اس نے خوخار نظروں کے ساتھ لیا اور لبوں سے لگایا۔ عورتیں صورتحال کی تہہ تک نہ پہنچ سکے اور نہ سمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی، مگر مرد حضرات معاملہ بھاپ چکے تھے، اس لیے اپنی ہنسی دبا کر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ بابا، میں سوچ رہا تھا کہ آگے بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو کیوں نہ شامیر کا نکاح تھوڑا آگے بڑھا دیا جائے۔ باران نے یہ بات کہتے ہوئے جان بوجھ کر روبان خان کی طرف دیکھا۔ اسے شامیر کی مسکراہٹ سے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ترکیب اس کے دماغ کی اختراع تھی، جو اب روبان خان کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ باران نے بھی اپنے شیطانی دماغ کو متحرک کیا اور سوچا کہ شامیر کو اسی کے کھودے ہوئے گڑھے میں ہی گرا دینا چاہیے۔ اب کی بار کھانسی کا شدید دورہ شامیر کو پڑا، جو منہ پر ہاتھ رکھ کے بری طرح کھانسنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر دائیں جانب بیٹھے موسیٰ نے پوری دیانتداری سے اس کی کمر تھپ تھپائی، یا شاید توڑ کر رکھ دی۔ ذلیل منحوس انسان، ہاتھ تو ہلکا رکھ۔ شامیر موسیٰ کے بھاری ہاتھوں کے وار سے تڑپ اٹھا اور بے ساختہ پشتوں میں صلواتیں سنا دی۔ لالا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ارمان نے نوڈل سے اپنا باؤل بھرتے ہوئے شامیر کو چھیڑا، جیسے بدلہ لے رہا ہو۔ اسے یاد تھا کہ ابھی کچھ دیر قبل شامیر نے ہی باران کی شکایت تایا جان سے کی تھی۔ پاپا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرمینے کے پہلو میں بیٹھی پٹھانی فراک میں ملبوس انارا نے بہرام خان کی آستین جھنجھلاہٹ سے کھینچتے ہوئے سوال کیا۔ فاقہ زدہ چھپکلی، انہیں چھوڑو، تم کھانے پر دھیان دو۔ ویسے بھی تمہیں اشد ضرورت ہے کھانے کی، اور یہاں تیز ہوائیں شروع ہو چکی ہیں، ایسا نہ ہو تم کہیں اڑ ہی جاؤ۔ انارا نے غصے سے سرخ ناک کے ساتھ ارمان کو گھورا، جو ندیدوں کی طرح نوڈلز پر ٹوٹ پڑا تھا۔ شٹ اپ یو منکی، میں نے تم سے نہیں اپنے پاپا سے بات کی ہے۔ انارا کی جھنجھلاہٹ اپنی انتہا پر تھی۔ حوصلہ کر بچے، حوصلہ۔ زارون نے ارمان کو انارا کو گھورتے دیکھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور مصنوعی افسوس جتایا۔ ارمان نے زارون کی دبی دبی مسکراہٹ کو دیکھتے ہی موقع کا بدلہ لیا اور اس کے پیر پر پیر رکھ کر زور سے کچل دیا۔ آہ کمینے، پیر ہٹا میرے پیر سے۔ زارون درد سے چلا اٹھا۔ اس کے شور پر اسما خانم کے پہلو میں بیٹھی پریشیں سہم گئی۔ وہ ابھی مکمل طور پر نارمل نہ ہوئی تھی، تیز آوازیں اسے ڈرا دیا کرتی تھی۔ سوری، زارون کو جیسے ہی احساس ہوا، فوراً نادم انداز میں پریشے سے معذرت کی۔ یہ لو، یہ تو تایا جان سے بھی بڑا زن مرید نکلا۔ شامیر کی زبان پھر سے چل پڑی۔ اس بار اس نے خود سے ہی اعلان جنگ کیا تھا، جس پر روبان خان نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب تو کسی کا بھی کہکا ضبط میں نہ رہا۔ باران،
तुम्हारी बात दुरुस्त है, शामिर का निगाह अगले 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर देना चाहिए। रुबान खान के मुस्तहकम और फैसला कुल लहजे ने शामिर की हंसी को पल में रोक दिया। बारहान ने हल्की सी चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, जैसे कह रहा हो, ले बेटा, तेरा ही खेल तुझ पे ही उलट गया। अब सबकी नजरें बारहान से हटकर शामिर पर मरकूज हो चुकी थी। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और वो बिल्कुल गुमसुम होकर बैठा रह गया। ये मुस्कात और मात भी उसे ही मिली थी। ताया जान, ये क्या कह रहे हैं आप? शामिर ने हलक तर करते हुए मदद तलब नजरों से अपने वालिद की तरफ देखा, जिन्होंने लाताल्लुकी से सर झटक दिया। फिर उसने अपनी ताई जान की तरफ देखा, आंखों में मासूमियत समोई, मगर सब बेकार था। रुबान खान अगर एक बार कह देते कि निकाह 2 हफ्ते बाद होगा तो वो बात पत्थर पर लकीर बन जाती। शामिर, जिस कल का इंतजार बेसब्री से कर रहा था, अब वो भी दूर होता दिखाई दे रहा था। खान, क्यों तंग करते हो हमारे शाह को? ज़ुबिया खानम फौरन ही शामिर की मासूमियत पर पिघल गई। अरे खानम, मैं तो बस। रुबान खान कुछ कहना ही चाहते थे कि अचानक रुक गए, क्योंकि ये वो वाहिद मकाम था जहाँ रुबान खान की भी नहीं चलती थी। हुब्बा खानम ने उन दोनों को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए रुख फेर लिया। कुछ चेहरों पर मोहब्बत थी, कुछ पर हंसी, कुछ पर नाराजगी की झलक। यूं हंसी खुशी और नोक-झोंक के दरमियान रात के खाने का इख्तिताम हुआ। लेकिन इस पूरे हॉल में 2 आंखें ऐसी थी जिन्हें ये सब ना खुशी दे सका, ना सुकून। एक की आंखों में इंतकाम था और दूसरे की आंखों में पछतावा। बारान ने खाने का आखिरी निवाला उठाया और ज़ारा के चेहरे के करीब कर दिया। वो मंजर उसे बचपन से याद था, जब वो अक्सर अपने ताया बाबा को अपनी बेगम के मुंह में निवाले रखते देखता था। एक अनजानी सी ख्वाहिश, एक छोटी सी तमन्ना हमेशा दिल के किसी गोशे में रही थी कि काश वो भी कभी अपनी शरीके हयात के साथ ऐसी ही सादगी, अपनायत और मोहब्बत भरा लम्हा बांटे। ज़ारा सटपटा गई। उसने घबराकर इधर-उधर देखा। बाकी सब अपनी बातों में मगन थे। सबने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर वो बेयकीनी के आलम में बारान की तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, क्या वाकई? बारान ने उसे देखकर धीरे से मुस्कुराकर निवाला उसके लबों तक पहुंचा दिया। ज़ारा के दिल में अभी पिछली हैरत की धड़कन बाकी थी कि वो नई हरकत में डूब गई। बारान उसे मुसलसल हैरान कर रहा था और ज़ारा खुद को बेबस, बेखबर और बेकाबू महसूस कर रही थी। ये छोटा सा लम्हा बारान के दिल में अजब सा सुकून, एक भरपूर खामोश खुशी ले आया। वो मुस्कुराकर कुर्सी पीछे सरकाता खड़ा हो गया। उसको उठने के साथ ही ज़ारा भी खामोशी से उसके पीछे चल दी। उनके जाने के बाद बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों को लौटने लगे। कल का दिन सबके लिए बहुत अहम था। एक थकन तारी थी सब पर, जैसे दिल और जहन पहले ही कल के इंतजार में जा चुके हों। बेहतर यही था कि जल्द अपने अपने कमरों में चले जाएं, क्योंकि कल का दिन इस कहानी को नया मोड़ देने वाला था। बारी, माही राजा, लॉन में बैठे हैं, बर्फबारी रुक गई है। शामिर की आवाज सीढ़ियों की तरफ आती बारान के कदम रोक गई। वो रुका और रेलिंग के नीचे झांक कर देखा तो तमाम नौजवान लॉन की जानी बढ़ रहे थे। बड़े सब जा चुके थे। कमरे अपने मकीनों से भरने लगे थे। बारान ने इस बात में सर हिलाया और अपनी शॉल दुरुस्त करते हुए पलटने लगा और तभी देखा एक सीढ़ी नीचे खड़ी ज़ारा उसे देख रही थी। आ जाओ, लॉन में चलते। वो नरमी से उसका हाथ थाम कर बोला। मैंने ईशा की नमाज अदा करनी है, ज़ारा ने धीमी आवाज में कहा, तो बारान फौरन उसका हाथ छोड़कर एक तरफ हट गया था ताकि वो सुकून से सीढ़ियां चढ़ सके। ज़ारा के जाने के बाद बारान लॉन की तरफ आ गया। वहां अब तकरीबन पूरी यंग जनरेशन मौजूद थी, सिवाय परी गुल, हरम और परी शेख। लॉन में कल के फंक्शन की तैयारी के सिलसिले में हल्की सी चमक थी। बड़की कुमकुमों की भरी भरी सी लाइटिंग, क्यारियों के गेट लगे छोटे छोटे खूबसूरत फूलों के गमले एक दिलकश मंजर तख्लीक कर रहे थे। शब की हल्की हल्की खनकी रंग बिरंगी रोशनियों के दरमियान हवा में गूंजती बातें एक मुकम्मल तस्वीर सी बन गई थी। मारान लंबे लंबे डग भरता हुआ लॉन के एक तरफ बने शेड के नीचे आ गया, जहाँ गोल दायरे में कुर्सियां लगी थी। उसने एक कुर्सी खींचकर अरमान के साथ बैठने का इरादा किया, जो सर पर ऊनी टोपी पहने हाथ पर फूंक मारकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। ठंड में अगरचे मामूली सी कमी आ चुकी थी, लेकिन वो अब भी खांसी महसूस हो रही थी। ज़ारून ने ज़रमीने से कॉफ़ी की फरमाइश की तो वो खुशी खुशी उठकर सबके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। कॉफ़ी वाहिद चीज़ थी जो ना सिर्फ शौक से बल्कि कमाल के बनाती थी। सुनो, सुनो, मेरी बात सुनो, एकदम अनारा बुलंद आवाज में बोलती वहां चली आई। उसने ब्लैक एंड पिंक मोटा भालू वाला नाइट ड्रेस पहन रखा था। सर पर बड़ी सी गोलेदार ऊनी टोपी थी और हाथ में एक डायरी और पेन।
وہ खासी प्यारी लग रही थी, खास तौर पर उसके ठंड से सुर्ख होती छोटी सी नाक के साथ। सबकी तवज्जो बेख्तियार उसकी जानिब हो गई जब वो शाहमीर के पास खाली कुर्सी पर टांगे समेटकर चौकड़ी मारकर बैठ गई। जी तो सब मेरी बात गौर से सुने, वो पूरे एतमाद से बोली। ठंड के बाईस जब भी कोई बोलता तो उसके मुंह और नाक से धुआं सा बरामद होता। सर्दियों की ठंडी रातें यूं ही तो दिल को भाती हैं। चांद की रोशनी, हल्की ठंडी हवा और अपने चाहने वालों का साथ। जी बोलिए बच्चे, हम सुन रहे हैं। मूसा उसकी मासूमियत से महजूज होते हुए नरमी से बोला। अनारा ने नजरें घुमाकर अरमान को देखा, जो हल्की सी आंखें सुकेड़े उसकी हरकत का मुशाहिदा कर रहा था। शायद दिल में हंसी दबा रहा था। अनारा ने नागवारी से किया और मुंह मोड़कर मूसा की तरफ मतवज्जा हो गई। मूसा लाली, मैं आप सब लोगों का इंटरव्यू लूंगी और उसे इस डायरी में नोट डाउन करूंगी, ताकि जब मैं यहाँ से जाऊं तो आप लोगों को याद रख सकूं। अनारा ने बड़ी संजीदगी और प्यार से अपनी बात रखी। मूसा के चेहरे पर उस वक्त हैरत की एक लहर दौड़ गई जब उसने खुद को लाली कहते सुना। लाला की जगह ये नया लकब खासा चौंकाने वाला था। और उधर अरमान को तो जैसे हंसी का बाकायदा दौरा पड़ चुका था, जो काबू में नहीं आ रहा था। बाकी चारों ने अपनी हंसी जब्त करने के लिए घासने का सहारा लिया और यूं सर्दियों की एक और रात अपनी खासी गर्मी लिए कहकहों में ढलने लगी। अनारा लाला होता है, लाली नहीं। जरमीनी ने कॉफी की ट्रे लाकर दरमियान में रखी, छोटी सी मेज पर रखते हुए अनारा की तसी की, जो अपनी गलती पर जीभ गई। अनारे ने लब दांतों में दबाए और हंसते हुए जल्दी से अपना मुज़क्कर मुअन्नस ठीक कर लिया। ओह सॉरी लाला, बिस्किट भी ले आओ। जरमीन ने कुर्सी खींचने ही लगी थी कि अरमान ने शरारती हंसी के साथ बत्तीसी निकाल कर उसे देखा। जरमीने ने वहीं से दांत पीसकर उसे घूरा और बिना कुछ बोले पलटकर दोबारा अंदर चली गई। उसके कदम जैसे गुस्से की रिदम पर चल रहे थे। पीछे से मूसा ने मौका गनीमत जानकर अरमान की कमर पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। अरमान ने चौंक कर बुरा सा मुंह बनाया और मूसा को गुस्से से घूरा। मगर अगले ही लम्हे अनारा ने अपनी शोला सिफत आवाज में महफिल को दोबारा अपनी तरफ खींच लिया। चलो शुरू करते हैं हैंडसम अंकल से। ये कहते ही वो शामिर की सिमत घूम गए। नहीं, पहले किसी और से पूछो। शामिर ने जरा सा नखरा दिखाया, जैसे इनकार करके मजा ले रहा हो। नहीं, मैं पहले आपसे ही पूछूंगी, अनारे ने इसरार किया। आवाज में शरारत भी थी और जिद भी। मेरा मूड नहीं है, शामिर थोड़ा और मुंह बिसोड़ते हुए बोला। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छुपी न रह सकी। वो जानता था अनारा के सामने नखरे का फायदा नहीं। प्लीज ना, बस 2 सवाल, सिर्फ 2। अनारे ने दोनों हाथों की उंगलियां खड़ी करके मिन्नत भरे अंदाज में कहा। शामिर, जो आजकल अपनी होने वाली शादी की खुशी में फिजाओं में उड़ता फिर रहा था, इनकार का इरादा कब का छोड़ चुका था। अच्छा चलो पूछ लो, लेकिन सिर्फ 2, उसने नीम रजामंदी से जवाब दिया। बाकी सब खामोशी से कॉफी के हल्के हल्के घूंट ले रहे थे और महजूज हो रहे थे कि आज का शो किसके नाम है। पहला सवाल, आप शादीशुदा हैं? अनारा ने ड्रामाई अंदाज में सवाल पूछा। ये सवाल शायद उसने किसी टीवी शो या ड्रामे से सीखा था, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि शामिर की शादी अभी नहीं हुई, कल होनी है। शामिर के लबों पर हल्की मायनी खेज मुस्कुराहट उभर आई। नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह कल से जरूर कहलाऊंगा। ये जवाब उसने आधा नारा से और आधा दिल में दिया था, जैसे एक खामोश अहद हो किसी खास के लिए। ओके, अनारा ने फौरन वो जवाब डायरी में नोट किया। उसकी संजीदगी ऐसी थी जैसे ये कोई जुर्म की तफ्तीश हो और हर लफ्ज सबूत के तौर पर दर्ज किया जा रहा हो। आपके बच्चे हैं? अगर हैं तो कितने हैं? शामिर ने जो अभी अभी कॉफी का घूंट लिया था, इस सवाल पर फौरन सब कुछ बाहर उगल दिया। कह कि एक तेज लहर फिजा में गूंज उठी। मारान, जिब्रान और अरमान बेसाख्ता हंसने लगे। बच्चे? मूसा और जारून ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा और फिर वो भी उस कह में शामिल हो गए। आर यू मैन? शामिर हंसी दबाते लेकिन थोड़ा सा झुंझलाकर बोला। बेवकूफ लड़की, जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आएंगे? अनारा का चेहरा परेशान हो गया। उसने मासूमियत से मूसा की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, क्या वाकई मेरा सवाल गलत था? मूसा ने नरमी से सर हिलाया, जैसे कहना चाहता हो, कोई बात नहीं, बच्ची हो, समझ जाओगी। इतने में जरमी ने हाथ में बिस्किट का डब्बा लिए वापस आई और उसे लाकर अरमान के सामने रखा। उसकी नजर अपने भाइयों पर पड़ी, जो अभी भी हंसने के असर में थे। वो नासमझी से उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ खान जी, आप लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो?
लेकिन सब एकदम चुप हो गए। वो जानते थे कि ज़रमीन उनकी बहन है, मासूम, लेकिन नादान नहीं। वो समझ सकती थी, वो पठानों की औलाद थी। सीधी-सादी ज़रूर मगर भोली नहीं, और ऐसी बातें उसके सामने ज़ेरे बहस नहीं लाई जा सकती थी। कुछ नहीं बच्चे, बस ऐसे ही, मूसा ने नरमी से बात निपटा दी। ज़रमीन ने एक लम्हा सोचा और फिर खामोशी से बैठ गई। कभी-कभार खामोशी ही फ़हम की आला तरीन शक्ल होती है। अंकल, मैं आपसे सवाल पूछूं? अनारा का ध्यान अब बारान की तरफ था। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें चमक रही थी, मगर बारान के माथे पर हल्की सी शिकन नमूदार हुई। कहीं फिर से कोई ऐसा सवाल न पूछ ले जो उसे दफाई बना दे। मगर बारान के कुछ बोलने से पहले ही अरमान की शरारती रग भड़क उठी। ओ छिपकली, चुप करके ये खाओ। अनारे ने खूंखार नजरों से उसे घूरा। आंखों में बकायदा चिंगारियां थी। तुम खुद खा लो हाथी, जवाब में उसने तप कर कहा। और फिर दोनों के दरमियान तू मैं शुरू हो गई। उनकी नोक-झोंक में ऐसी बेसाख्तगी थी कि सबके चेहरों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। अनारा इंटरव्यू के मकसद को मुकम्मल भूल चुकी थी। वो पूरी तवज्जो से अरमान के तंज का जवाब देने में मगन थी। शामी ने मौका से फायदा उठाया। उसने अनारा की गोद में रखी डायरी आहिस्ता से उठाई और उसे बारान की तरफ उछाल दी। बारान ने फौरन कैच की और डायरी को अपनी कुर्सी की पुश्त के पीछे छिपा दिया, कहीं दोबारा उसे इंटरव्यू याद ना आ जाए। यूं बातों कह कहूँ शरारतों और मुस्कुराहटों के दरमियान वक्त का पल लगाकर उड़ गया। किसी को पता न चला। घड़ी ने चुपके से 1 बजा दिया। मारा ने अपने शॉल दुरुस्त की, नजर दौड़ाई और नर्म लहजे में सबसे कहा, बस अब चलें, सब थक गए होंगे, कल का दिन बहुत लंबा है। सबने धीरे धीरे रजामंदी से सर हिलाया और अपनी अपनी राह ली। बारान खामोशी से अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया और उसके साथ ही रात ने अपनी आखिरी करवट ले ली। एक ऐसी रात जिसके बाद कहानी को एक नया मोड़ मिलने वाला था। तुम सोई नहीं अभी तक? महारान कमरे में दाखिल हुआ तो ज़ारा को जागते पाया। वो सोफे की टेक पर सर रखे बैठी थी। एक लम्हे को वो ठठक गया। वो उसके सामने पैरों तक आती लाल मैक्सी में मलबूस, दुपट्टा शानों पर डाले, कंधों तक आते खुले बालों के साथ किसी सादा सी आराइश के बगैर थी। कुछ था जो उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ले गया था। वो आप आए नहीं थे तो बस। वो फौरन सीधी होकर बैठ गई और गाल पर झूलती लट को कान के पीछे किया। अच्छा, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। मारा ने शॉल उतारते हुए बेड पर फेंके और कफलिंग्स खोलकर ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए ज़ारा ने फौरन सर हिलाया और अलमारी की तरफ बढ़ी। वहां से उसने वही ट्राउज़र और शर्ट निकाला जो अक्सर बारान को पहने देखा था। जैसे ही वो पलटी, बारान को बिल्कुल पीछे खड़ा देखकर एक पल को घबरा गई। उसकी आंखों में उतरती हुई हया बारान के दिल को एक अजीब सा सुकून दे गई। उसने हाथ बढ़ाया तो ज़ारा ने बेसाख्ता आंखें मूंद ली। बारान ने मुस्कुराहट दबाते हुए अलमारी का वो पट बन गया जो जरा सा खुला रह गया था। फिर नरमी से उसके हाथ से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज पर ज़ारा ने चौंक कर आंखें खोली। उसका सांस बेतरतीब था। बारान के बदलते अंदाज ने उसे अंदर से हिला कर रख दिया था। एक उलझन थी, एक घबराहट भी, मगर उसके साथ एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे अब वो जान चुकी हो कि बारान अब उसे कभी छोड़ेगा नहीं। कुछ देर बाद वो वापस आया तो ज़ारा बेड के किनारे पर बैठी थी। जैसे ही नजरें उस पर पड़ी, फौरन खड़ी हो गई। बारान ने तौलिया बालों पर रगड़कर एक तरफ टांगा और बेड की अपनी तरफ नीम दराज हो गया। उसने हाथ के इशारे से ज़ारा को करीब बुलाया। वो लब दबाती आहिस्ता आहिस्ता बेड पर चढ़कर घुटनों के बल रेंगती हुई उसके पास आई तो बारान ने उसका हाथ थामा और हल्का सा झटका देकर उसे अपने पहलू में खींच लिया। अब मंजर बहुत सादा और पुरखुलूस था। ज़ारा का सर उसके बाजू पर था। वो खामोशी से उसकी खुशबू बिखेरते बालों में उंगलियां चलाने लगा। ज़ारा की सांसें कमरे की खामोशी में वाज़ेह सुनाई दे रही थी। वो यकटक छत को देख रही थी और बारान आंखें बंद के उसके बालों की जड़ों को थामे जैसे किसी सुकून को महसूस कर रहा हो। साईं। कुछ देर बाद ज़ारा की धीमी आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंजी। बारान ने हिस्ब आदत मुख्तसर सा जवाब दिया। वो आंटी ने एक बैग दिया था। बारान ने हल्की सी आंखें खोली। कौन सा बैग? अब वो कोहनी के बल करवट लेकर सर पर हाथ टिकाए उसे देखने लगा, जो होम थिएटर की तरफ नजरें जमाए बैठी थी। मैंने खोलकर देख लिया था, उसमें कुछ चीजें थी। कैसी चीजें? बारान ने नासमझी से पूछा। एक तेल की बोतल थी, एक शैम्पू और बाकी 2 बॉक्स और थे। पता नहीं किस चीज के थे। वो उंगलियों पर गिनती करते हुए बोली। बारान को फौरन याद आया, वही हेयर स्पेशलिस्ट से मंगवाई गई चीजें, ताकि ज़ारा के बाल फिर से वैसे ही हो जाएं जैसे पहले थे।
हाँ, वो मास्क और सीरम होगा। इस बॉक्स के साइड पर तरीका इस्तेमाल लिखा है, पढ़ लेना। उसने मुख्तसर अंदाज में कहा, जैसे बात खत्म करना चाहता। मैंने कोशिश की थी लेकिन ज़ारा की आवाज़ हल्की सी रुकी। लेकिन क्या? वो ज़रा चिढ़ गया। रुक रुक कर बात करने वाली लड़कियां उसे कभी पसंद नहीं थी, मगर ये लड़की उसकी बीवी थी। वो इंग्लिश में लिखा है और मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब की बार ज़ारा की पलकें झपकी। आवाज़ शर्मिंदगी में ढल गई। मारा ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। अब वहाँ हया के बजाय शर्मसारी के रंग थे। कुछ बेबसी, कुछ एतराफ़, बहुत सादा, बहुत सच्चा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा दूंगा, वो नरमी से बोला, उसकी शर्मिंदगी कम करने के लिए। अब तक वो उसी पोजीशन में लेटा ज़ारा को देख रहा था। सुनो, वो हल्का सा उसकी जानिब झुका। ज़ारा ने फौरन उसकी तरफ देखा। मैं ना बहुत सादा सा बंदा हूँ और कुछ खड़ूस भी। वो उसके गालों पर बिखरे बाल पीछे करते हुए बोल रहा था जब वो अचानक से बोली, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा खड़ूस। वो मासूमियत से आंखें टिमटिमाते उसे देख रही थी। महरान के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट उभरी। ज़ारा की साफ गोई, उसकी बेसाख्ता मासूमियत और आंखों में चमकती हुई नमी महरान को अजीब सा सुकून दे रहे थे। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खड़ूस हूँ? उसने मसनूई नाराजगी से पूछा। ज़ारा की नाक के सिरे को हल्के से उंगली से छूते ज़ारा ने लबों को दबाया, जैसे हंसने की कोशिश रोकी हो, फिर सर हिला दिया। बिल्कुल, पहले तो मैं डर ही गई थी आपसे। हर वक्त खामोश, संजीदा, जैसे दुनिया का सारा बोझ आपके कंधों पर हो। और अब? उसने सवाल पूछा, मगर आवाज में बेहद नरमी थी। ज़ारा ने उसकी आंखों में झांका। अब लगता है आप मेरे अपने हैं। बारान के दिल के किसी कोने में कुछ नरम सा गुदगुदा गया। वो लम्हा, वो खामोशी, सब कुछ बहुत गहरा हो गया था। तुम जानती हो मिसेस बारान? वो अब धीरे से उसकी पेशानी पर उंगली फेरता बोला, मैंने बहुत से रिश्ते देखे, समझे, निभाए, मगर तुम जैसे खालिस लोग बहुत कम मिलते हैं। और जो खालिस हो उन्हें सलीके से संभालना पड़ता है। ज़ारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ बोलना चाहती थी पर आवाज जैसे गले में अटक गई हो। महाराज ने आहिस्तगी से उसका हाथ पकड़ा और अपनी सीने के करीब रखा। मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि अगर कभी कोई इस दिल पर काबिज हुआ तो वो तुम ही होगी। उसकी सी आंखें भर आई। क्या वो मोहब्बत के काबिल थी? सच में? वो जैसे बेयकीन थी। मुकाबिल ने हाँ में सर हिलाया और झुककर धीरे से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। सिरापा मान, सिरापा एतबार से भरपूर, जिस पर वो पल में अपनी आंखें आसूदगी से मूंद गई। कमरे की खामोशी अब बहुत बातें कर रही थी। दो लोग, दो दिल और एक लम्हा जो लफ्जों का मोहताज नहीं था। आखिरकार बारान ने साबित कर दिया था कि जरूरी नहीं वनीमाई औरत को रौंद ही दिया जाए। बेगुनाह को सजा देना न कभी हक का फैसला था और न ही गैरत का। दुनिया ने अगर उन्हें सफीर खान से इंसाफ न दिया तो बारान ने अपनी ताकत, अपने बलबूते पर उसे उसके गुनाह की सजा जरूरी, मगर अपने निगाह में आने वाली लड़की को वो जलील न कर सका। मोहब्बत शायद ना थी, लेकिन इज्जत देने में उसने कोई कमी ना आने दी। और सच तो यही है कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी इज्जत ही होती है। बारान उस पाकीज़ा रिश्ते को मुकम्मल कर चुका था, मगर इज्जत, एहतराम और शाइस्तगी के साथ। तबाना, तुमको हमने बोला था वहां से मिठाई का टुकड़ा उठाओ। वो अब तक वहीं पड़ा है। असमा खानम मुलाजमा पर कुछ बरहम हुई। इलाकाई लिबास में मलबूस कीमती शाल ओढ़े वो सुबह से बेचैन से फिर रही थी। मुलाजमों ने उन्हें घन चक्कर बना दिया था। उनके बड़े बेटे का निकाह था। उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। आज एक बार फिर से खान हवेली में वही रौनक थी जो 2 माह पहले शहजाद खान के निकाह पर थी। सुबह से मुलाजिमों की दौड़े लगी हुई थी। मजाली जो अस्मा खानम ने किसी को सुकून से बैठने दिया हो। अस्मा, क्यों डांट रही हो तुम उसको? जाओ तुम और एक ही बार में सुन लिया करो। जुबिया खानम मुस्कुराते हुए उनके करीब आई। मुलाजमा को भेजकर वो उन्हें लिए सोफे पर बैठ गई। वो खुद भी अस्मा खानम की तरह ही ड्रेसिंग किए हुए थे, बस रंग का फर्क था। भाभी, हम कौन सा शौक से डांटे हैं? ये लोग हमारा सुनते ही नहीं है, हम क्या करें? अस्मा खानम की फितरत ऐसी नहीं थी कि वो मुलाजमों पर सख्ती करती, लेकिन आज मौका ही ऐसा था कि वो छोटी से छोटी चीज को लेकर भी परेशान हो रही थी। अच्छा छोड़ो, आज इतना बड़ा दिन है, तुम परेशान मत हो। वो उनके कंधे को हल्के से थपक कर उठ खड़ी हुई। सुरमई आंखों वाली लड़की सियाह हुडी और जीन्स में मलबूस तेजी से खाली सड़क पर दौड़ रही थी।
اس کی ہائی پونی میں بندھے سنہری بال ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ وہ ان کی آواز اپنے کانوں میں سن سکتی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی بالکنی کے قریب آئی۔ پھر وہ مشکل رسی چڑھ کر وہ بالکنی میں کود گئی۔ اس کی آنکھیں اس قدر سرخ تھی کہ گویا خون اگل دیں گی۔ وہ کمرے میں آتے ہی اپنی ہوڈی اتار کر پھینکتی، اپنے سفید شرٹ کے لمبے بازوؤں سے کور ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی اور کبھی اضطرابی کیفیت میں بالوں کو مٹھیوں میں بھینچے پاگل ہونے کو تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پلان فلاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا دھوکہ۔ وہ دیوانی سی ہو رہی تھی۔ جیک، کمرے میں آؤ۔ وہ کان میں لگے بلوٹوتھ کا بٹن دباتے سرد لہجے میں مختصر سا بولی۔ کچھ ہی دیر میں جبران کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کرتے وہ کچھ کنفیوز سا ہوتا حرم کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ نگاہ پھیر گیا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ بے اعتباری، بے یقینی، تکلیف۔ حرم وہ، اس کے باقی کے الفاظ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ وجہ حرم کی طرف سے پڑنے والا زناٹے دار تھپڑ تھا۔ اس تھپڑ میں اس قدر شدت تھی کہ کمرے میں اس کی آواز گونج اٹھی۔ جبران نے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے حرم کو دیکھا۔ جیک، ایسا کیوں کیا تم نے؟ جواب دو مجھے۔ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑ کر اسے دور جھٹک کر صوفے پر سر پکڑے جا بیٹھی۔ حرم، یہ غلط بکواس بند کرو اپنی۔ کیا اب تم مجھے بتاؤ گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا؟ وہ اس کی بات کاٹے دہاڑی تھی۔ وہ پاگل ہونے کو تھی۔ جیک اس کا پلان فلاپ کر چکا تھا۔ کرسٹل کوئین کا پلان۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ اٹھ کر جبران کے نزدیک آئی جو سر جھکائے کھڑا تھا کسی مجرم کی طرح، کیونکہ اس نے واقعی جرم کیا تھا کرسٹل کوئین کا آرڈر نہ مان کر۔ جیک، کیا سوچ کر تم نے میری خلاف ورزی کی؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے کافی سنجیدہ معلوم ہو رہی تھی۔ خاموشی مجھے زہر لگتی ہے۔ میرے سوال کا جواب دو تم۔ ایسے تو نہیں تھے کہ میرے آرڈر کو رد کر دیتے؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر تلخ ہوئی۔ سامنے کھڑے شخص نے اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ بھول نہیں سکتی تھی۔ ایک طرح سے اس نے اس کے ساتھ غداری کی تھی، پر شاید وہ واحد انسان تھا جسے وہ سزا نہیں دے سکتی تھی۔ اسکائی بلو ٹریک سوٹ میں ملبوس دراز قد مرد نے پلکیں اٹھا کر اس کے غیظ و غضب سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا گیا۔ اس کا یہ عمل مقابل کو سلگانے کے لیے بہت تھا، پر وہ ضبط کر گئی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ دھیرے سے منمنایا، پر وہ شاید بھول گیا تھا خلاف ورزی کبھی بھی غیر متوقع نہیں تھی۔ یہ انتخاب ہوتی ہے اور انتخاب کی قیمت ہوتی ہے۔ آگے بولو۔ وہ فوراً اس کی معافی کو دھتکار گئی۔ میری غلطی ہے، پر ہم کسی ایک کے کیے کی سزا دوسرے کو کیوں دیں؟ وہ اب کی بار اپنی صفائی میں کچھ بولا تھا۔ کرسٹل نے ابرو اچکائے، پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھا، گویا مزید سننا چاہتی ہو۔ آئینو ارمان داور خان کا بیٹا ہے، لیکن وہ ایک معصوم ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ چند لمحے وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی پل اس کا کہکا کمرے میں گونجا۔ کمرے کی دیواریں اسے حیرانی سے دیکھے گئی۔ کیا وہ پاگل ہو گئی تھی؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی۔ جیک ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ وہ اس قدر ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہو گئی، جسے اس نے انگلی کی پوروں سے رگڑ کر صاف کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے ارمان کلیئر ہے؟ وہ اب کی بار تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئی۔ جیک نے ہلکا سا سر اس بات میں ہلایا۔ اف جیک، تم نے ثابت کیا کہ تمہاری ٹریننگ میں ابھی کمی ہے۔ تم انسان کو پرکھنا، پہچاننا، بات کو سنبھالنا، ان سب میں بالکل اناڑی ہو۔ 2 قدم نزدیک آتی اس کے کان کے پاس جھکی۔ ارمان ڈارک ویب کا اگلا جانشین ہے۔ وہ دھیمی سے سرگوشی اسے ساکت کر گئی تھی۔ دیواریں دم سادھے گئیں، خاموشی طوفان بن گئی اور کھیل ایک نئے آغاز میں جا بسا۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ ایسا کیسے؟ صدمے نے زبان کا ساتھ جوڑ دیا۔ وہ بس لفظ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جملے بکھرے ہوئے نکل رہے تھے۔ اس کی حالت گویا دل و دماغ کے درمیان پھنس چکی تھی۔ وہی تو کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے کام میں بالکل ماہر نہیں ہو ابھی تک۔ وہ اب صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ چہرے کا تناؤ کچھ کم ہوا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں ایک تلخ سی مسکراہٹ تھی اور سامنے کھڑے وجود کو ویسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی کم فہمی پر افسوس کر رہی ہو۔ صوفے کی پشت سے بدن ٹکایا اور گہری سانس بھرتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں جب یہاں آئی تھی تو مجھے لگا یہاں سب کلین چٹ ہے، کسی میں کوئی برائی نہیں، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اس حویلی کا سب سے معصوم اور لاؤبالی سا لڑکا اتنا بھی معصوم نہیں جتنا وہ نظر آتا ہے۔ اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا، تبھی وہ جگہ جگہ میرے ساتھ جانے کی کوشش کرتا، میرے ارد گرد رہنے کی کوشش کرتا۔ اس دن جب وہ میرے ساتھ گاؤں جانے کے لیے نکلا تو میں اسے جان بوجھ کر
उस ऊंची पहाड़ी की तरफ ले गई। मैं जानती थी वहां खूंखार जानवर होते हैं, कोई ना कोई जरूर अपने शिकार को आएगा और इसी तरह मैं अरमान की असल हकीकत से पूरी तरह वाकिफ हो जाऊंगी। लेकिन मैं हैरान हो गई जब एक मामूली सी भेड़िए को देखते ही वो बेहोश हो गया। मेरा सारा शक पानी की तरह बह गया। मैंने उसे शक की निगाह से देखना छोड़ दिया, लेकिन वो बोलते बोलते रुकी, सांस फूली हुई थी। लहजा हमवार करने के लिए लम्हा भर खामोशी इख्तियार की, फिर दोबारा बोली, लेकिन 2 दिन पहले ही जाजिब ने बताया कि दावर खान बहुत जल्द अपने बेटे अरमान को डार्क वेब का जानशीन बनाने वाला है। मुझे बहुत हैरत हुई। वो इंसान जो जरा सा खून देखकर डर जाए, वो कैसे डार्क वेब का अगला जानशीन बन सकता है? ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। तभी मैंने तुमसे कहा था कि निकाह से एक दिन पहले ही उसे अगवा कर लो, ताकि सबका ध्यान निकाह से हट जाए। वो खामोश हुई। माहौल में एक तवक्कुफ पैदा हुआ, जैसे हवा कुछ देर रुक गई हो। तो इससे दावर खान को क्या नुकसान पहुंचता? सवाल में हैरानी से ज्यादा तंज का पहलू था। बहुत गहरा नुकसान पहुंचता, बहुत गहरा। जब दावर खान का बेटा गायब हो जाता, तो उसका अगला जानशीन कौन बनता? अगर मुकर्ररा वक्त और दिन पर अरमान उन्हें न मिलता, तो डार्क वेब की कुर्सी किसी और को चली जाती और दावर की वैल्यू टके की भी न रहती। उसके चेहरे पर सोच का साया फैल गया। वो समझ चुका था कि उसकी कम फहमी ने एक मौका जाया कर दिया। अफसोस जैसे अंदर ही अंदर फैलने लगा। आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था, वरना वो अब सख्त शर्मिंदा था। लहजा झुक चुका था और आंखों में सिर्फ एक चीज थी, पछतावा। अंदाजा माई फुट, वो चुपते हुए लहजे में बोली, जो कुछ बिगाड़ना था वो तुम कर चुके हो। अब जाकर अपनी बहन की निकाह की तैयारी करो। जिब्रान कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वो हाथ उठाकर उसे खामोश करवा गई। तुमने मेरा पूरा प्लान तबाह कर दिया है। अब ना मैं यहाँ से जा सकती हूँ, न तुम, इसलिए निकाह होगा। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून। मैं चाहती हूँ शामिर की जिंदगी से दूर रहूं, लेकिन तुमने मुझे जबरदस्ती उसकी जिंदगी में धकेल दिया है। अब जो भी होगा वो निकाह के बाद होगा। जिब्रान सकते में आ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। वो तो बस चाहता था कि शामिर और हरम के बीच रिश्ता सच्चाई पर कायम हो, ना कि किसी बदले या मजबूरी पर। हरम, तुम बस चुप करो। उसने उसकी बात काट दी और हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा। जो करना था तुमने कर लिया, अब यहाँ से चले जाओ फौरन। जिब्रान बस एक नजर उसे देख पाया, खाली बेचारगी से भरी नजर, और फिर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। पीछे वो हल्का सा मुस्कुराई। शायद पहली बार दिल को किसी ठहराव का एहसास हुआ। शायद शामिर के साथ बनने वाला ये रिश्ता उसे वो जिंदगी दे सकता था जिसकी उसे तलाश थी। एक लम्हे को वो सब कुछ भूल गई। बदले, गुस्से, तकलीफें, लेकिन सिर्फ लम्हा भर के लिए। फिर वही पुराना जज्बा वापस आया, और वो हल्की सी मुस्कुराहट जो दिल से निकली थी चेहरे से गायब हो गई। क्योंकि मोहब्बत की सरगोशी जब मन तक के शोर में दब जाए, तो ना दिल की बात समझ आती है, ना दिमाग की जीत सुकून देती है। खबीस, जल्दी ठीक हो जा। तेरी वजह से मैं इस अस्पताल का होकर रह गया हूँ। वो अशर को सीधा करके बैठाते हुए उसके सामने सूप का बाउल रखते हुए बोला। अशर ने लब दबाए और बालाज के लहजे में छिपी झुंझलाहट को महसूस किया। वो जानता था कि बालाज इस जगह से बुरी तरह तंग आ चुका है, मगर महज उसकी मोहब्बत में यहाँ वक्त गुजार रहा है। चल, नाराज क्यों होते हैं? मैं खुद तंग आ चुका हूँ इस माहौल से। अशर ने सूप का चम्मच भरते हुए बुरा सा मुंह बनाया। बालाज ने उसे बगौर देखा। अस्पताल के मखसूस लिबास में वो खासा कमजोर लग रहा था। नकाहत के बाइस उसके चेहरे की उजली रंगत पर जर्दी सी छा गई थी। ऐसे क्या देख रहा है? अशर ने सूप का बाउल खत्म करते हुए लबों पर जुबान फेरकर बालाज को देखा, जो उसे बहुत गौर से देख रहा था। देख रहा हूँ मेरी महबूबा कितनी कमजोर हो गई है। अस्तगफिरुल्लाह, जामनूस, शर्म नहीं आती नौजवान बंदे पर डोरे डालते हुए? आशा ने एकदम अपना कंफर्टर गर्दन तक खींचते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा। वो लोग स्पेशल वार्ड के रूम में थे, इसलिए उनके अलावा वहाँ कोई ना था। कुछ देर पहले ही डॉक्टर आकर अशर का चेकअप कर गया था। उसका कहना था कि अशर को परसों छुट्टी मिलेगी। चोट के सर पर लगी थी और जख्म गहरा था, साथ ही टांकों की नोयत भी खासी पेचीदा थी, तो मुकम्मल एहतियात लाजमी थी, जो एक आम इंसान घर में नहीं कर सकता। वो दोनों बातों में मगन थे जब एक मेल नर्स वहां आया अशर की पट्टी तब्दील करने के लिए। बालाज बेंच से उठकर 1 सीटर सोफे पर जा बैठा। बात सुनो। न जाने बालाज को क्या सूझी, उसने नर्स को अपनी तरफ मतवज्जा किया। जी सर, उसने बैंडेज करते हुए जवाब दिया। ये जो
रोज डॉक्टर राउंड पर आता है। डॉक्टर जारून, वो आज क्यों नहीं आया? उसने सेब दांतों से कतरते हुए लापरवाही से पूछा। अलबत्ता उसकी पूरी समातें जवाब की मुंतजिर थी। वो जी उनके हवेली में आज बड़ी तकरीब है। उनके भाई का निकाह और उनका खुद का वलीमा भी है। वो बड़ी खुशी से बता रहा था। वलीमा उसका है और खुश तुम हो रहे हो? अरे सर जी, हमें भी बुलाया है, हम उनके खास आदमी हैं। उसने अपनी खुशी की असल वजह बताई तो बालाज बस ओह कहकर रुक गया। उसके जहन में अचानक एक और सवाल आया। ये जो डॉक्टर गुल हैं, ये डॉक्टर जारून की क्या लगती हैं? वो तो साहब उनकी भाभी हैं, डॉक्टर परीगुल शहजाद खान। आयशा ने बखूबी देखा था कि उस बात पर बालाज के चेहरे का रंग यकायक बदला था, जिसे वो फौरन काबू में ले आया। इस बात से अनजान कि अशर उसे देख चुका है और वो अभी मजीद कुछ पूछने ही वाला था कि नर्स को किसी ने आवाज दी, जिस पर वो जी सर कहता जल्दी से बाहर चला गया। मरहम पट्टी तो वो कर चुका था, बस बालाज के सवालात की वजह से रुका हुआ था। बालाज, तुम क्यों पूछ रहे थे उस डॉक्टर के बारे में? अशर का अंदाज खासा तफ्तीशी था। कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ लिया, वो संजीदगी से बोला और मोबाइल निकाल कर उस पर मसरूफ हो गया। ये वाज़ेह इशारा था कि अब मजीद कोई सवाल न किया जाए। अशर ने खामोशी से उसे देखा, एक ऐसी नज़र से जो सिर्फ देखती नहीं परखती भी है। आसमा खानम और जुबिया खानम हरम के कमरे में दाखिल हुई तो हरम को देखकर उनके लबों से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला। आसमा खानम दुआएं देती उसके करीब आई और उसका माथा चूम लिया। वो लगी कुछ इस कदर हसीन रही थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हरम बच्चा तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए हमारे बच्चे की खुशियों को। साजदा, लाल मोटा मिर्च लेकर आओ, हम अपनी बच्ची की नजर उतारें। उन्होंने फौरन साजदा को आवाज। कुछ ही लम्हों में वो सात साबुत लाल मिर्चें ले आई तो अस्मा खानम ने मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ से उसकी नज़र उतारी। हरम ने उनकी इस कदर शफ़क़त पर बमुश्किल अपनी आंखों में उतरती नमी को रोका। आज उसे दिल भरकर अपनी माँ याद आई थी, जो उसके ज़रा सा सुरमा लगाने पर भी उसके सदके वारी जाती थी। जाओ, इसे जाकर जला दो। अस्मा खानम साजदा के हाथ में मौजूद प्लेट में मिर्चें रखती इस्तकामत भरे लहजे में गोया हुई और फिर हरम की तरफ मुड़ी। ज़रमीने, वो दुपट्टा देना हमको। ज़रमीने ने फौरन बेड पर पड़ा लाल जालीदार दुपट्टा उठाया और अस्मा खानम की जानिब बढ़ाया, जो किनारों पर गोटे से मज़य्यन था और दरमियान में कशीदाकारी से लिखा था, शामिर की दुल्हन। वो दुपट्टा उन्होंने ज़ूबिया खानम की तरफ बढ़ाया, जो उस लम्हे अपनी भीगी आंखें दुपट्टे के पल्लू से खुश कर रही थी। उन्होंने चौंक कर उनकी तरफ देखा, जहाँ अस्मा खानम की निगाहों में फ़कत मुलायमत ही थी। भाभी, शामिर हमसे पहले तुम्हारा बेटा है, तुमको पूरा हक है। वो नरमी से बोली और दुपट्टा उनके हाथों में थमा गई। ज़ुबिया खानम ने दुपट्टा थाम कर अपनी आंखों की नमी समेटी और हरम की जानिब बढ़ी। दुपट्टा खोला, दोनों कोनों से थामा और आहिस्तगी से उसके सर पर उड़ा दिया। हरम ने शीशे में झांककर लाल जाली से उभरते अपने अक्स पर निगाह दौड़ाई। शामिर के पसंदीदा गहरे जामुनी रंग के वेलवेट शरारे में मलबूस, कलाइयों में भर भर कर गोल्डन और पर्पल चूड़ियां, सादा सी मेहंदी जो दोपहर में ही लगवाई गई थी, हाथ में सोने के जिमर्द नगीने वाली अंगूठी, सुराहीदार गर्दन में जिमर्द जड़ा चोकर, कानों में नन्हे जिमर्द झुमके, माथे पर नाजुक सी सजी माथा पट्टी, बालों का जूड़ा और उस पर ठहरा भारी दुपट्टा, चेहरे पर सिर्फ गहरी जामुनी लिपस्टिक और सुरमई आंखों में लगा हुआ गहरा काजल। वो उस लम्हे वाकई ही एक पख्तून की दुल्हन लग रही थी। और रही सही कसर उसके सर पर ओढ़े लाल जालीदार शामिर के नाम वाले दुपट्टे ने पूरी कर दी। वो सवात की पहली ऐसी निकाह की दुल्हन थी जिसने गहरे जामुनी रंग का जोड़ा पहना था, वरना वहाँ की रिवायत के मुताबिक निकाह की दुल्हनों को हमेशा धीमे रंग का लिबास पहनाया जाता था, जैसे सफ़ेद, गुलाबी या हल्का पीला। मामा जानी, आज आपकी बहुत याद आ रही है। दिल में एक ख्वाहिश से उभरी कि काश वो भी एक आम सी लड़की होती तो आज अपनी जिंदगी की इस कीमती दिन को दिल की गहराइयों से बेखौफी से महसूस कर पाती। ज़ारा ने अपनी नारंगी और काली चूड़ियों को कलाइयों में भरते हुए खुशी से उन्हें खनखना कर देखा। नारंगी और काले रंग की इम्तजाज से बनी फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस सर पर बड़े से दुपट्टे को संभाले उसने आईने में झांका तो यूं लगा जैसे वो शीशों से मज़य्यन नारंगी रंग में खुलता हुआ गेंदे का फूल हो। गालों पर ठहरी हल्की लाली और भरे भरे लबों पर सजी दिलकश मुस्कुराहट वाकई दीद के काबिल थी।
उसने जल्दी से आंखों में बारीक सी काजल की लकीर खींची, फिर हरे रंग का खस्सा निकाल कर पहना, शॉल संभाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, मुकम्मल तौर पर बाहर जाने के लिए तैयार। वो दरवाजे की दहलीज पर ही थी कि बारान इजलत में दरवाजा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो सुबह वाले ही रफ्त से हुलिये में था। हवेली के बेशुमार कामों को निपटाते निपटाते उसे खासा वक्त लग गया था। जैसे ही फरागत मिली, वो जल्दी से कमरे में आया ताकि खुद भी तैयार हो सके, लेकिन यूं ही उसकी नजर ज़ारा पर पड़ी। वो एक पल को रुक सा गया, जैसे लम्हा ठहर गया। ज़ारा ने उसे देखकर तेजी से पलकें झपकाई। बारान खामोशी से कदम कदम उसके करीब आया और नरमी से उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। आज वो वाकई एक सरदार की बीवी लग रही थी, बावकार, दिलनशीन और बेहद दिलरुबा। साईं, वो नजरें झुकाए, उंगलियां मोड़ते धीरे आवाज में बोली, बोलो कुर्बान। बारान ने उसकी रुखसार से झूमती लट को मोहब्बत से कान के पीछे किया और दिलफरेब नरमी से जवाब दिया। ज़ारा के गालों पर यकदम गुलाबी रंग उमड़ आया, पलके जैसे मानो बोझ तले दब गई। बारान ने उसके चेहरे को गौर से देखा, उसे गुमान भी नहीं था कि वो इस कदर ब्लश कर जाएगी। इतनी मासूम शर्म दिल को एक अजीब सा सुकून दे गई। ओफ अल्लाह, ये लड़की इतना क्यों शर्माती? और जेरे लब मुस्कुरा कर बोला, फिर उसकी आंखों को अपनी उंगलियों से छूकर जैसे उसकी धड़कनों को संभालने की कोशिश की और कामयाब भी हो गया। ज़ारा के अंदर सब कुछ उलझ सा गया, दिल, धड़कन और खामोश जज्बे। बारान ने उसे शर्माते देखकर गहरी सांस भरी और आहिस्ता से खुद को उससे अलग किया, वरना कोई शक नहीं था कि मोहतरमा अगले ही लम्हे होश हवा से बेगाना जमीन बोस नजर आती। उसके छोड़ने की देर थी कि ज़ारा ने इर्द गिर्द देखने की भी जहमत न की और पलक झपकते ही कमरे से बाहर निकल भागी। उसकी उस फुर्ती पर बारान का दिलकश बेसाख्ता कहकहा कमरे की फिजा में गूंज उठा। क्या वाकई जिंदगी यूं भी अच्छी गुजर सकती है? ओ मोड़ा, तुम तो बहुत प्यारा लग रहा है। मूसा की आवाज पर शामी ने अपनी शाल दुरुस्त करते हुए उसकी तरफ देखा। हल्के सब्ज रंग की शलवार कमीज में मलबूस सब्ज काई जैसी आंखों में हल्की सी शरारत ली। वो उसके करीब आकर गले लग गया। इत्तेफाक था कि बारान से पहले मूसा ही उसके बगल गिर हुआ था। तुम बस ठीक ही लग रहे हो। हैं? वो क्यों? क्या हमें अच्छा नहीं लग रहा? वो शामिर से अलग होते हुए आईने में खुद को देखने लगा, मगर उसे खुद में कोई कमी नजर न आई। अरे मूसा लाली, दूल्हा हमें तो प्यारा भी तो सिर्फ हम ही लगेंगे ना? वो फखर से गर्दन अकड़ाते उसी के अंदाज में बोला। तो मूसा ने लाली लफ्ज पर दांत किचकिचाकर उसे देखा, जो ज्यादा ही शोखा हो रहा था। खैर, उसका दिन था तो बख्श दिया। वैसे लग तो वाकई बहुत प्यारा रहा था। सफेद कमीज और भूरी शाल में मलबूस वो शहजादा लग रहा था। कुछ ही देर बाद अरमान भी वहीं आ धमका, जो लाइट ब्राउन शलवार कमीज में काली वास्कोट पहने काफी दिलकश लग रहा था। पैरों में पेशावरी चप्पल, हाथ में ब्रांडेड घड़ी। आह, सियासतदान से ज्यादा अमीर तो ये बच्चा था। उनके लिए तो बच्चा ही था, मूसा ने कूदते हुए सोचा और वहीं बेड पर विराजमान हो गया। लाला, वैसे अगर शहजी लाला भी जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। अरमान की अचानक कही गई बात ने मूसा और शामिर दोनों को अफसुर्दा कर दिया। शामिर को बेसाख्ता शहजाद के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आ गई, वो जो वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकता था। कमीने मनहूस, तू मर जाएगा मुझसे। तुझे पता है अगले हफ्ते मेरा निकाह है और तू मिशन पर रवाना हो रहा है। शामिर अपने कमरे में बिस्तर पर टांगे सीधी किए लेटा था कि अचानक शहजाद तन-फन करता हुआ आकर उसकी टांगों पर धप से बैठ गया। मेरी टांगे! शामिर ने जोरदार मुक्का उसके कंधे पर मारा। अबे उतर मेरी टांगों से! हाय, मार डाला! शामिर की आहो बका शुरू होते देख शहजाद ने एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया, जिस पर कराहते हुए शामिर ने बमुश्किल उसे घसीट कर अपने से दूर किया। फौज का जवान गांव के सरदार के सामने कमजोर पड़ा था, जो कि नामुमकिन था। तेरी तो मैं। शामिर एकदम अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को साइड पर फेंकते शहजाद को घुमाते हुए उसके ऊपर चढ़ गया। दोनों एक दूसरे में गुत्थम गुत्था थे कि अचानक अरमान उछलता हुआ उनके कमरे में दाखिल हुआ और जोरदार चीख मार गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। तौबा तौबा, ये क्या देखना पड़ रहा है? हाय अल्लाह, गुल भाभी, तुम्हारा तो भाग ही फूट गया। अरमान सीनों को दोनों हाथों से पीटते हुए बड़ी दादी माओ की तरह दुहाइयां दे रहा था। उन दोनों ने अरमान की बात सुनकर ढील कर उसे देखा, फिर अपनी हालत की तरफ नजर दौड़ाई और करंट खाकर एक दूसरे से दूर हो गए। शहजाद की आधी से ज्यादा स्लीवलेस शर्ट पेट से ऊपर हो चुकी थी और ट्राउजर भी पिंडलियों से खासा ऊंचा था। यही हालत शामिर की भी थी।
दोनों एक दूसरे को खूंखार नजरों से घूरते हुए अपनी हालत दुरुस्त करने लगे। दोनों ने कहर भरी नजर अरमान पर डाली, जिसके अभी भी बहन जारी थी। वो कभी हाथों को आंखों पर रखता तो कभी सीने को पीटता। शहजाद ने कुछ सोचते हुए शामिर की तरफ देखा और आंखों आंखों में कुछ समझा, जिस पर शामिर ने धीरे से हाँ में सर हिला। फिर अगले ही लम्हे शामिर और शहजाद ने अरमान को काबू किया हुआ था और अरमान की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी, जो यह साबित कर रही थी कि शामिर के कमरे में फिर कोई महाज खुला हुआ है और बारान हवेली में नहीं था, वरना उनकी आवाजें हलक से बिना निकलती। वजह बारान का डर और इज्जत दोनों थी। वो जितना उसे डरते थे, उससे कई ज्यादा उसकी इज्जत भी करते थे। डाइनिंग हॉल में बैठे रात का खाना खाते अफराद ने नफी में सर हिला, गोया उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। हाँ भाई, रेडी हो आप सब? ज़ारून अपने कोट के कफलिंग्स लगाते हुए रूम में दाखिल हुआ, तो शामिर अपने अफसरदा ख्याले माजी से बाहर आ गया। उसने ज़ारून की तरफ देखा, जो काले पैंट कोट में मलबूस, बालों को जेल से सेट किए, पैरों में बूट पहने सबसे अलग थलग लग रहा था। उसका वलीमा था, तो उसे इससे बेहतर चॉइस कुछ और न लगा। और भला वलीमे पर शलवार कमीज कौन पहनता? क्या हुआ, कुछ हुआ है? वो खिलाफे तवक्को खामोशी नोट करते पूछने लगा। हाँ वो, नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ तुम रेडी हो? अरमान की बात दरमियान में ही काटे शामिर ने अपने ग्लोगीर लहजे पर काबू पाते हुए बोला। वो जानता था शहजाद से सबसे ज्यादा ज़ारून करीब था और फिलहाल वो उसका जिक्र करके उसे अफसरदा नहीं कर सकता था। जी लाला, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बताओ जरा कैसा लग रहा हूँ? ज़ारून ने बाजू फैलाए बच्चों की तरह खुश होते हुए पूछा। बहुत प्यारा, अपने लाला की जान ले रहा है। शाहमीर ने आगे बढ़कर ज़ारून को सीने से लगाया और उसे प्यार किया। आज शहजाद की याद उसकी सोचों पर हमला आवर हो रही थी। उसने भला क्या बिगाड़ा था किसी का, जो उसे यूं मौत की नींद सुला दिया गया। वो लोग तो कभी न मानते कि वो लाश शहजाद की है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट्स और उसके पास से मिलने वाला सामान जरूर साबित करता था कि वो उस हवेली के चश्मो चिराग की मशकशुदा लाश है। और फिर उसका कुछ चेहरा भी वाज़ेह था। लाला, इज एवरीथिंग ओके? जब चंद लम्हे गुजरे और शामिर ज़ारून से अलग ना हुआ, तो ज़ारून ने संजीदगी से इस्तफसार किया, जिस पर वो जल्दी से आंखें बंद करके नमी को अंदर की तरफ खींचते हुए हंसते हुए पीछे हटा। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस अब तेरा लाला पराया होने वाला है, तो बस जरा इमोशनल हो गया। शामिर के इस कदर तेजी से बात पलटने पर मूसा और रहमान मुस्कुरा दिए। वो उस आंखों में छुपा दर्द देख चुके थे। बस फर्क ये था तो उस दर्द में वो भी हिस्सेदार बनना चाहते थे, लेकिन अभी मौका महल नहीं था। चलो आ जाए फिर। बारान लाला भी पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक तैयार होकर नहीं निकले रूम से। ज़ारून समझ तो गया था कि क्या बात है, लेकिन वो भी इमोशनल होकर अपने लाला के खास दिन को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए बात का रुख पलट गया। शाह, तेरा एक और भाई भी है। शामी ने बारान की आवाज पर दरवाजे की तरफ देखा, जो ऐन दरवाजे के बीचों बीच खड़ा उसे सुनहरी आंखों से घूर रहा था। हल्के नारंगी रंग के सूट शलवार में मलबूस, कंधों पर काली कनी वाली शाल ओढ़े हुए था। तीखे नकुश पर घुली संजीदगी में भी शाहमीर वाज़ेह जलन का तासुर देख सकता था। वो जानता था कि बज़ाहिर वो संजीदा नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसे ज़ारून के साथ लाड करते देख कुड़ गया होगा। लाला, मैं भी तो आपका भाई हूँ। बारह ने आंखें छोटी किए ज़ारून को देखा, जो चेहरे पर मासूमियत सजाए उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही बारान मध्यम सा मुस्कुराया, होठों के कोने खींचते हुए। उसके गाल पर हल्का सा गढ़ा वाज़ेह हुआ, जिसे देखते ही अरमान तो हाय, दिल पर हाथ रखे बेड पर लेट गया, जैसे मानो कितना बड़ा सदमा लग गया हो। उसकी हरकत पर वो सभी हंस पड़े। सदमा तो वाकई बहुत बड़ा था। फरहान मुस्कुराया ही बहुत कम करता था। अरमान की ड्रामाबाजी शुरू होते देख बारान के तासुर फिर संजीदा हो गए, जिस पर वो जल्दी से सीधा हो गया कि कहीं डांट ही ना पड़ जाए। ऐसे ही हंसी खुशी कह कहो कि भनभनाहट में वो पांचों कमरे से निकलकर मर्दाने की तरफ चल पड़े। हाँ जी, तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमारा नावल जो है वो ऑलमोस्ट आधा कवर हो चुका है। और आपको क्या लगता है कि ये निकाह होने वाला है या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं और बेचारा शामिर उसका निकाह लटका दिया जाएगा? आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और जहाँ तक बात हुई कि वो लोग शहजाद की लाश देखकर कभी यकीन ना करते, लेकिन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह मिलाई गई, तो मुझे शक हो रहा है इस लाइन को पढ़कर कि कहीं शहजाद जिंदा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सारा माजरा तो उसके मौत के बाद का ही शुरू है। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या होने वाला है। नावल आधा निकल गया है और
बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं, जो कुछ भी खुलकर अभी सामने नहीं आया। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।